بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوٹل میں رابرٹ مائیکل کے نام سے میں نے اپنا اندراج کروایا تھا، کیونکہ سرحدی قصبے میں کسی مسلمان کا ٹھہرنا ہی اس کو مشکوک بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرے باقی ساتھی بھی ہندو اور کرسچن ناموں سے ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ 2 گھنٹے بعد ہی رضی کیسر کا دیا ہوا رکا لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے تینوں فوجیوں کو بھی اپنے کمرے میں بلوا لیا اور ان کے سامنے رکا پڑھنے لگا۔ کیسر نے تھانے کی عمارت کا نقشہ بھی بنایا تھا۔ کیسر کے اندازے کے مطابق تھانے کی کل نفری 16 افراد اور سب ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ ریوالور سے مسلح صرف اے ایس آئی اور تھانے دار ہی رہتے تھے، باقی سب عملے کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوتی تھی۔ میں نے یہ سب فوجیوں کو بتا کر انہیں اپنا پلان بتایا۔ میرے پلان کے مطابق کل شام ڈھلے ہمیں تھانے پر حملہ کرنا تھا۔ اس وقت اے ایس آئی، تھانے دار اور ہیڈ محرر عموماً تھانے میں موجود ہوتے تھے۔ پلان کے مطابق میں نے تھانے دار کو اور کیسر نے اے ایس آئی کو غیر مسلح کرنا اور اسلحہ کی نوک پر ان سے مال خانے کی چابیاں لینی اور اپنے ہتھیار نکالنے اور ساتھیوں کو چھڑانا تھا۔ اس دور افتادہ تھانے میں الارم سسٹم ہونا بعید از قیاس تھا، اور پلان کے مطابق ساتھیوں کو چھڑوانے کے بعد تھانے والوں کو مال خانے لے جانا اور ایک ایک کر کے تھائی ساتھیوں نے ان کے گلے کاٹنے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اس مشن میں بارودی اسلحہ کا استعمال مجبوری کے علاوہ نہ کیا جائے اور خاموشی سے ساری نفری کو ہلاک کر کے جے سی او کی قیادت میں رانا گھاٹ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ قصبے والے حال ہی رات کو تھانے کی طرف جاتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ہماری کارروائی کا علم اعلیٰ افسران اور قصبے والوں کو صبح سے پہلے نہ ہو، تب تک ہم ان کی پہنچ سے بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ کارروائی سے پہلے ہوٹلوں سے اپنا سامان اٹھائیں گے اور چیک آؤٹ نہیں ہوں گے، اور کلپنا کو سامان کے ساتھ اس جگہ راستے پر انتظار کے لیے کھڑے کر دیں گے جہاں سے ہم نے گزر کر رانا گھاٹ کی طرف جانا تھا۔ میرے پلان کو سب نے سراہا، مگر ایک تبدیلی یہ کی گئی کہ قصبے کے کسی بھی آدمی کے تھانے میں موجودگی کو سامنے رکھتے ہوئے کارروائی کا ٹائم رات 9 بجے منتخب کیا گیا۔ یہ عجیب بات تھی کہ رانا گھاٹ والے راستے پر ہی تھانا تھا، یعنی ہمیں اپنی کارروائی کر کے دوبارہ قصبے سے نہیں گزرنا تھا۔ جے سی او کے مطابق شانتی پور سے رانا گھاٹ کا سفر 6 سے 7 گھنٹے کا ہے، اور بقول اس کے ہم انشاءاللہ 8ویں گھنٹے میں بنگلہ دیش میں ہوں گے۔ پلان کی تفصیل اور وقت طے کر کے میں نے فوجیوں کو ان کے روم میں بھیج دیا اور کھانا کھا کر تھانے میں کارروائی کی تجزیات میں کھو گیا۔ تھانے دار کو قابو کر کے پہلے مال خانے کو کھلوانا، پھر ساتھیوں کو حوالات سے نکلوانا تھا۔ میں نے پروگرام میں 2-3 تبدیلیاں کی۔ تھانے دار کو قابو کرنے کے بعد پہلے ملحقہ اسلحہ خانے پر قابض ہونا اور بعد میں مال خانہ کھلوانا، تاکہ کارروائی کے دوران کوئی پولیس والا مسلح نہ ہو سکے۔ رضی کو تھانے کے گیٹ پر کھڑا کرنا، تاکہ اگر کوئی ملاقاتی آئے تو اسے یہ کہہ کر واپس کر دے کہ کمشنر صاحب راؤنڈ پر آئے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی پولیس والا آئے تو اسے فوری اندر بھیجنا۔ تھانے کی ٹیلی فون لائن بھی کاٹنی تھی۔ ہمارا یہ پلان دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، اگر تھانے کے حالات ہماری توقع کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ دوسری صورت میں ہمیں فوری اسلحہ کا استعمال کرنا تھا، کیونکہ ایک بار تھانے میں گھس کر پلان تبدیل کرنا یا کارروائی نہ کرنا ناممکن تھا۔ تھانے میں ایک جیپ کا ہونا لازم تھا جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ جیپ ہمارے واپسی کے راستے کی نشاندہی بھی کر سکتی تھی، اس لیے اسے استعمال نہ کرنے کی صورت میں دوسروں کے لیے ناقابل استعمال بنانا بھی ضروری تھا۔ انہی سوچوں میں کھویا ہوا میں سو گیا۔ اگلے دن میں رضی اور تھائی ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں آج رات کے اٹیک کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ سب نے پلان کی تائید کی، اور میں نے انہیں رات 8 بجے اپنے ہوٹل کو چھوڑ کر سامان اور اسلحہ سمیت تھانے کے قریب آگے 2 گز کے فاصلے پر رکنے اور انتظار کرنے کا کہا۔ وہیں پر کلپنا نے ہمارا انتظار کرنا تھا۔ رضی کے ذریعے کیسر کو مون ریسٹورنٹ میں بلا کر سب پلان سمجھایا۔ اس نے 8:45 بجے ہمیں تھانے کے گیٹ پر ملنا تھا، پر رضی نے کلپنا کو ساتھ لے کر مقررہ مقام پر چھوڑنا اور واپس آ کر ہمیں تھانے سے باہر ملنا تھا۔ تینوں فوجیوں اور تھائی ساتھیوں نے 2-2 کی ٹولی میں 8:45 بجے تھانے پہنچنا تھا۔ سب کو ہدایات دے کر اور گھڑیاں ملا کر میں واپس اپنے ہوٹل آ گیا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل اپنے مشن کی کامیابی کے لیے ادا کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا مانگی۔ اس مشن میں ناکامی کی صورت میں کم از کم میں تو اپنی جان دے دیتا۔ کیسر کے ساتھیوں کی گرفتاری میرے لیے اتنا بڑا بوجھ بن چکی تھی جس کا بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ میری ہی وجہ سے یہ مصیبت میں گرفتار ہوئے تھے، اور اب میرا فرض تھا کہ انہیں رہا کرواؤں یا پھر اس کوشش میں اپنی جان دے دوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر التجا کرنے اور پھر دعا مانگنے سے مجھے بڑا سکون ملا۔ باقی وقت میں نے کمرے میں ہی آرام کرنے میں گزارا۔ رات کارروائی میں کامیابی کے بعد
हमें मुसलसल 8 घंटे चलना था, जिसके लिए हमारा ताज़ा दम होना लाजम था। अभी शाम के 7 ही बजे थे कि होटल में शोरगुल की वजह से मैं अपने कमरे से बाहर आ गया। 2 डंडे बरदार पुलिस वाले रमेश यानी कैसर की तलाश में आए हुए थे और उसका दरवाज़ा पीट रहे थे। होटल का मैनेजर उन्हें बार बार कह रहा था कि रमेश होटल से बाहर गया हुआ है, लेकिन वो सुनी अनसुनी करके मुसलसल दरवाज़ा पीटे जा रहे थे। मैं जल्दी से कमरे के अंदर गया और अपना सामान उठाकर होटल की रिसेप्शन पर आ गया। मेरे सामने ही कैसर होटल में दाखिल हुआ। मैंने उसे होटल की पहली मंजिल पर उसके कमरे के सामने पुलिस का उसे तलाश करने का बताया। अब इतना वक्त भी नहीं था कि हम इशारों में बातें करते। कैसर ने बताया कि कमरे में सिर्फ उसके कपड़ों का एक ही बैग पड़ा है। मैंने कैसर को कहा कि वो कुछ देर के लिए होटल से बाहर चला जाए और उस वक्त लौटे जब हमारा थाने पर अटैक करने का वक्त हो। कैसर मेरी बात सुनकर वहीं से वापस लौट गया। उस होटल के रेस्तोरां में मुखबर अभी तक बैठा हुआ था। कैसर से बातें करते हुए वो हमें कनखियों से देख रहा था। उसने हमें बातें करते देखकर जेब से कागज और पेन निकाल कर कुछ लिखा और कैसर के बाहर जाते ही होटल के दरवाजे तक गया और फिर वापस लौट आया। अब मैं भी निगरानी की लिस्ट में शामिल हो चुका था और वो कोई फैसला ना कर सका कि कैसर के पीछे जाए या मेरी निगरानी करे। उसे यकीनन होटल में सिपाहियों की आमद का पता था। अब हमारे पास वक्त बहुत कम था। मैं फौजियों के कमरे में गया और जेसीओ को कहा कि अब उन्हें जल्द अज जल्द होटल छोड़ देना चाहिए। 5-7 मिनट में वो भी अपना सामान वगैरह लेकर रिसेप्शन पर आ गए और होटल से चेकआउट करके रेस्टोरेंट में बैठ गए। मैं जल्दी जल्दी टैगोर होटल गया। वहाँ वाले सब साथी तैयार बैठे थे। मैंने उन्हें कहा कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि हम मुकर्ररा वक्त का इंतज़ार नहीं कर सकते, लिहाजा जल्द अज जल्द मतलूबा जगह पर पहुंचो और मेरा और बाकी साथियों का इंतज़ार करो। उन्हें हदायत देकर मैं फिर किंग होटल गया तो रास्ते में मुझे कैसर की महसूस विसल सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया तो कैसर एक दुकान की आउट से निकलकर मेरे पास आ गया। मैंने उसे कहा कि अब बेहतर यही है कि वो अपने होटल वापस चला जाए और सिपाहियों के हमरा थाने चला जाए। कानून के मुताबिक 2 सिपाही ना तो में हथकड़ी लगा सकते हैं और ना ही गिरफ्तार कर सकते हैं। तुम उनके साथ आहिस्ता चलते हुए थाने जाओ। हम भी उस वक्त तक वहां पहुंच चुके होंगे और प्रोग्राम के मुताबिक फौरन ही कार्रवाई शुरू कर देंगे। मेरा कैसर को सिपाहियों के साथ थाने भेजने का मकसद ये था कि हमारी कार्रवाई के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही थाने में मौजूद हों। मैं और कैसर आगे पीछे होटल में दाखिल हुए। कैसर सीधा अपने रूम में गया और अपना सामान उठाकर सिपाहियों के हमरा होटल से निकल गया। मैंने फौजियों को इशारा किया, वो भी होटल से बाहर चले गए। मैं भी बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा तो गुलाबी कमीज वाला मुखबर भी उठ खड़ा हुआ। थाने की तरफ जाते हुए हमारी तरतीब कुछ यूं थी कि तकरीबन 50 मीटर आगे कैसर और दोनों सिपाही, उनके पीछे तीनों फौजी और उनसे 20 मीटर पीछे मैं और मेरे पीछे नंबर 2 था। जब सामने थाना दिखाई देने लगा तो फौजी रुक गए। मैं और नंबर 2 आगे बढ़ गए और थाने से चंद कदम आगे अपने थाई साथियों के साथ रुक गए। मैं थाई साथियों से मजीद आगे चला गया। कैसर पहले ही पुलिस वालों के साथ अंदर जा चुका था और कैसर की मुखबरी करने वाला इनाम के लालच में अब मेरे पीछे लग गया था। वो भी थाइयों से आगे बढ़ गया। मैं यकलहत वापस पलटा और मुखबर को गले से दबोच लिया। सारे थाई मेरे पास आ गए। मैंने नंबर 2 को कहा कि मेरी मुखबरी कर रहा था। नंबर 2 ने खंजर उसके ऐन दिल में घोंप कर घुमा दिया। मुखबर तड़पा और फिर ठंडा हो गया। हमने उसकी लाश करीब दरख्तों में फेंक दी। हमने अपनी कार्रवाई का आगाज इस मुखबर से किया। इतनी देर में रजी कल्पना को मुकर्ररा जगह पर छोड़कर वापस पहुंच गया। अब रजी थाने के बाहर खड़ा हो गया और हम एक एक करके थाने में दाखिल हो गए। थाने के जहन में 3 लाशें पड़ी हुई थीं। ये उन्हीं बॉर्डर क्रॉस करवाने वालों की थीं और सब पोस्टमार्टम के बाद थाने लाई गई थी, क्योंकि वो इलाका जिसमें हमने उन्हें हलाक किया था इसी थाने की हदूद में आता था। लाशों के पास कोई ना था और उनके लवाहकीन का इंतज़ार किया जा रहा था। मैं नक्शे के मुताबिक SHO के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में SHO और ASI दोनों बैठे हुए थे और एक जानब कैसर खड़ा हुआ था। SHO के कमरे के बाहर खड़े सिपाहियों ने मुझे रोका, लेकिन मैंने उन्हें शट अप कहकर अंदर दाखिल हो गया। SHO ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे अंग्रेज़ी में कहा कि मैं इंडियन ईस्टर्न आर्मी की इंटेलिजेंस से हूँ और जैसूर के करीब हमारे हेलीकॉप्टर की तबाही की तहकीकात के लिए पहले जैसूर और फिर दरसना के रास्ते शांतिपुर आया हूँ। मेरे 3 मातहत भी मेरे साथ हैं और हम किंग होटल में ठहरे हैं। हमारी तहकीकात के मुताबिक चंद भारतीय गद्दारों ने
हेली कॉप्टर को तबाह किया है और वो शांतिपुर में तुम्हारी हिरासत में है। मैं उनके बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इनके खिलाफ सबूत के लिए मेरे पास एक हाथ ही काफ़ी है जो मुझे जाए वकुआ से मिला है। मेरे साथ आओ ताकि मैं तुम्हें वो हाथ दिखा सकूं। SHO ये सुनकर बिल्कुल ही सोचो विचार से आरी हो गया। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। SHO कुर्सी से उठा, मुझे सैल्यूट किया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कैसर मेरी एक एक हरकत को देख रहा था। SHO के करीब आते ही मैंने जेब से साइलेंसर लगा पिस्टल निकाला और उसकी कनपट्टी से लगा दिया और उसका सरकारी रिवाल्वर उसके पाउच से निकाल लिया। उतनी देर में कैसर ASI पर झपटा जो हमारी तरफ देख रहा था और अपना रिवाल्वर उस पर तान कर उसका रिवाल्वर निकाल लिया। उन दोनों को मैंने दीवार के साथ खड़ा करके हाथ पीछे करने का कहा। दोनों ने ऐसा ही किया। कमरे के दरवाजे पर पर्दे पड़े हुए थे, इसलिए अंदरूनी कार्रवाई की बाहर वालों को कुछ खबर ना हो सकी। मैंने कैसर को कहा कि बाहर खड़े सिपाही से कहो कि SHO साहब ने कहा है कि हेड मुहर्रर को कहो कि वो फौरन माल खाने और असलहा खाने और हवालात की चाबियां लेकर आ जाए। कैसर ने सिपाही को कहने के लिए दरवाजे का पर्दा उठाकर देखा और हंसते हुए कहने लगा कि हमारे साथियों ने पहले ही ये इंतज़ाम कर रखा है और थाने का सारा अमला हाथों को पीछे बांधे उल्टा लेटा हुआ है। ये सुनकर मैंने कैसर को फौरन दरवाज़ा बंद करने का कहा और साथ ही 2 फायर, एक SHO और दूसरा ASI के सरों पर कर दिया। मैं दुश्मन को जिंदा रखने का रिस्क नहीं ले सकता था। उन दोनों के पिस्टल जेब में डालकर हम बाहर आए। JCO ने हेड मुहर्रर से सब चाबियां ले ली थीं और कैसर के सारे साथी हवालात से बाहर खड़े थे। मैंने दोनों इजाफी पिस्टल कैसर के 2 साथियों को दे दिए और थाई साथियों के थाने के कंपाउंड में निगरानी की ड्यूटी लगा दी। हेड मुहर्रर इतना खौफजदा था कि उसने खुद ही माल खाने और असलहा खाने की चाबियां निकाल कर JCO को थमा दी। JCO ने माल खाने का दरवाज़ा खोला और कैसर के साथियों ने अपना असलहा उठा लिया। उसके बाद JCO ने असलहा खाने का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने साथियों को दोनों अस्टीन गन्स, उनकी गोलियां, फालतू मैगजीन और सरकारी रिवाल्वरों की हासी तादाद में गोलियां उठाने का कहा। अब हम असलहा खाने से बाहर आ गए। बाहर थाने के अमले के 16 अफराद फर्श पर लेटे थे। भारतीय बंगाल और बांग्लादेश में ASI से कम ओहदे वाले पुलिसमैन ढीली निक्कर और कमीज़ पहनते हैं और उनमें से कई एक की खौफ के मारे निकरें खराब हो चुकी थी। उनकी हालत देखकर मेरा इरादा डामाडोल होने लगा कि इनको जिंदा छोड़ देता हूँ। इसी शशोपंज में मुझे चंद सेकंड लग गए कि अचानक एक सिपाही खड़ा होकर कैसर पर झपटा। उसी लम्हे मेरी पिस्टल से गोली निकली जो उसकी पुश्त पर लगी। वो चीखने लगा, लेकिन मेरी अगली गोली ने उसे बिल्कुल खामोश कर दिया। मेरे दिल में जो उनके लिए हमदर्दी का जज्बा उभरा था वो अब वहशत में बदल गया। मैंने कैसर के साथियों की बाहर कंपाउंड में ड्यूटी लगाकर हाई साथियों को अंदर बुलवा लिया और उन्हें माल खाने में जाने का कहा। नंबर 2 भी उनके साथ ही चला गया। फौजी एक एक करके सिपाही को ठोकर मारकर उठाते और उन्हें माल खाने ले जाते और थाई इतनी सफाई से उनका गला काटते कि सी की आवाज़ तक ना आती। अलबत्ता उनका खून बहकर कमरे में आ रहा था। 21 मिनट में सब की गर्दनें काटने के बाद थाई माल खाने से बाहर आ गए। कैसर ने SHO के कमरे और दीगर कमरों को ताले लगाए और जीप का डिस्ट्रीब्यूटर कोड और कार्ड निकाल लिया। अब जीप बिल्कुल बेकार थी। रजी अभी तक बाहर ही खड़ा था। बांग्लादेशी फौजियों से छीनी हुई एक राइफल, बमा गोलियां मैंने रजी के हवाले की और उसके बदले थाई साथी को स्टीन गन दे दी। इस सारी कार्रवाई में अंदाजन 45 मिनट लगे थे। रात का अंधेरा छा चुका था। अब हम खामोशी से राना घाट की तरफ चल पड़े। कल्पना रास्ते में सामान के साथ हमारी मुंतजर थी। हम सब ने उसके पास पड़ा अपना अपना सामान उठा लिया। कैसर ने शांतिपुर से एक बड़ी टार्च और सेल भी खरीद लिए थे और अब JCO की रहनुमाई में हम राना घाट की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। हम थाने की टेलीफोन की लाइंस काटना भूल गए थे। कैसर ने मुझे याद दिलाया तो मैंने कहा कि थाने में कोई जिंदा होगा तो जवाब देगा। घंटी बाज बाज कर खुद ही खामोश हो जाएगी। टेलीफोन की लाइन ना काटना तो महज हमारी जल्दबाजी और गलती थी। वक्ती तौर पर कैसर को जवाब देकर मैंने मुतमईन तो कर दिया और ख़ुद भी उसे ज़्यादा अहमियत ना दी, लेकिन मेरी इस हद से ज़्यादा खुद एतमादी का बहुत जल्द हम सब को हमियाजा भुगतना पड़ा। वाक़यात के तसलसल को बरकरार रखने के लिए आइंदा पेश आने वाले हालात की वजह मैं यही बयान करता हूँ, जिसका इल्म हमें बाद में हुआ। SHO के घर पर भी टेलीफोन था। जब रोज़ाना के मामूल के मुताबिक ज़्यादा वक्त लगने पर SHO घर ना पहुँचा तो उसकी बीवी ने थाने फ़ोन किया, मगर घंटी बजती रही
किसी ने भी फ़ोन ना उठाया तो उसने मज़ीद 2-3 घंटे SHO का वेट किया। जब फिर भी घर ना पहुंचा तो उसने अपने बेटे को थाने पता करने के लिए भेजा। जब उसका लड़का थाने पहुंचा तो दरवाजे को ताला लगा देखकर वापस चला गया। घर जाकर उसने माँ को बताया कि थाने को बाहर से ताला लगा हुआ है और बत्तियां रोशन हैं। तो उसने अपने ससुर को, जो आर्मी से रिटायर्ड था, उसे बताया। वो थाने आया और दरवाजे पर लॉक लगा देखा तो वो शांतिपुर में मौजूद करीबी फौजी चौकी पर गया और उन्हें पुलिस स्टेशन के मुतल्लिक बताया। तो वहाँ पर मौजूद फौजी और उनका सीनियर फ़ौरन उसके साथ थाने पहुँचे। लॉक तोड़ा, अंदर दाखिल हुए तो उन्हें खून में लथपथ लाशें मिली। थाने के अंदर दाखिल होने और लाशें देखकर उन पर सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई। आर्मी मेजर ने थाने के फ़ोन से ही आला हुक्काम से रब्ता किया और उन्हें पुलिस स्टेशन के हादसे का बताया और फिर 1 घंटे में ही शांतिपुर से बाहर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, बल्कि बांग्लादेश से मिलने वाली सरहद के निगरानों को भी चौकस कर दिया गया था। थाने के बड़े कमरे में बहने वाले खून की वजह से हम में से कई साथियों के जूते खून से लुथड़ गए थे और हमारी कदमों के निशान खून की वजह से राना घाट पर भी पाए गए थे। दोनों थाई साथी अपनी खून से भरी कमीज़ें भी वहीं छोड़ आए थे। फौजियों ने फौरी सराग रसां कुत्ते मंगवाए जिन्होंने उन कमीज़ों में थाइयों की बू सूंघकर हम तक पहुंचना था। फौजियों के शांतिपुर थाने में आने से लेकर सारी कार्रवाई मुकम्मल करने तक 2 घंटे सर्फ हुए होंगे। राना घाट की तरफ हमारा जाना यकीनी जानते हुए उन्होंने सुराग रसां कुत्ते और फौजी जवानों की टीमों को तैयार किया। अब हमारी सुनिए। हमें मुसलसल चलते हुए तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके थे और हम थकन से निढाल 10-15 मिनट सुस्ताने के लिए रुके हुए थे कि हमें अपने पीछे दरख्तों में से किसी के आने का शक हुआ। हम सब चौकन्ने हो गए, लेकिन हम अभी कुछ समझ ही ना पाए थे कि एक साइकिल सवार भारतीय आर्मी की फौजी वर्दी पहने हमारे करीब आकर रुका और हाँफते हुए बोला कि मुझे फौरी अपने लीडर से मिलवाओ। उसके वहाँ पहुँचते ही हम सब ने अपना असलहा निकाल लिया। जैसे ही उसे मेरे पास ले आया और बोला, ये हमारा लीडर है। भारतीय फौजी ने बंगाली ज़ुबान में जो कुछ कहा उसका उर्दू तर्जमा JCO ने मुझे सुनाया। फौजी 20 साल से ज़्यादा अरसा से फ़ौज में है और सबूते ढाका से कबल लाहौर और कराची में तैनात रह चुका है, इसलिए रवानी से उर्दू बोल और समझ लेता है। शुरू में शांतिपुर के हालात मैंने बयान कर दिए थे। भारतीय फ़ौज का ये JCO मुसलमान था और पाकिस्तान और मुसलमानों से खासी मोहब्बत रखता था। उसे जब हमारे ताक़ुब का इल्म हुआ तो वो अपने मुसलमानी वाले जज्बात पर काबू ना रख सका और रात के अंधेरे में साइकिल पर सवार होकर गिरता पड़ता तलाश करता हमें इतला करने पहुंचा। क्योंकि हमारे खिलाफ ऑपरेशन में ये शरीक ना था, इसलिए इसे मौका मिल गया था कि हम पर अचानक उफ्ताद पड़ने से कबल हमें इतला कर सके। उसने बताया कि उस रास्ते पर ट्रक और जीप नहीं आ सकती, इसलिए वो हमारे ताक़ुब में पैदल ही आ रहे होंगे। लेकिन सूरज तलू होते ही भारतीय हेलीकॉप्टर भी उन टीमों की मदद के लिए पहुंच जाएंगे। वो भारतीय फौजी 15 मिनट हमारे पास रुका और फिर ये कहते हुए हमसे रुखसत हुआ कि मैंने मुसलमान होने के नाते अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। आगे आपकी किस्मत, अल्लाह आपको दुश्मनों से बचाए और आपकी रहनुमाई करे। ये कहकर वो चला गया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन मैं उसे आज तक उसकी मजहबी फ़राइज़गी पर गायबाना सल्यूट करता हूँ।